इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये 2^9। सो सिंपल यहाँ पे क्या है, सो यू नो ये जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना। You have to fill 9 positions and each position has 2 choices, ठीक है। So this position had 2 choice and, है ना, तो add और multiply करना, how do we decide? We decide using or and and. तो or है या and है, English वाला or and. So here first element has 2 choices and second element has 2 choices and third element has 2 choices and so on, each element has 2 choices. So 2 into 2 into 2 by multiplication rule of counting, 2 into 2 into 2 up to 9 times the 2 की पावर 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे गए हैं ना, ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द मैट्रिक्स हो जाएगा। जी, तो वही तो पूछा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। So how many matrices can be formed having each entries either 0 or 1? So there are total 512 matrices can be constructed like this. मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या, एलिमेंट्स के जो चॉइसेस हैं हमारे पास। सो अगर मैं सबको 0 रख दूं, जैसे 1 मैट्रिक्स, एक एलिमेंट को 1 कर दूं, बाकी सब 0, सेकेंड मैट्रिक्स, एंड दिस ऑर्डर इफ यू मेक, देयर विल बी टोटल 512 मैट्रिसेस। वो हमने काउंट किया कि ईच एलिमेंट यू कैन प्लेस 0 और 1 एंड ईच एलिमेंट्स यू कैन प्लेस अदर 0 और 1, 0 और 1 और 1, सो 2 and 2 and 2। सो वी आर क्या कर रहा हूं यहाँ पे, फिलिंग choices to each elements. So there are total, है ना, total possibility है 512 different ways are there, ठीक है। देखिए क्या कंफ्यूजन बताइए। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, अभी आएंगे वो क्वेश्चन देखेंगे, मिलेगा वहां पे। In this question the entry 0 1 2 then 3 to the power 9. No, each entry are 0 or 1, there are 9 elements here, okay। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जनरल रूल क्या है। पहले क्वेश्चन समझ आया आपको, यू रीड क्वेश्चंस। यस सर। क्या पूछ रहा है बताइए। ऑल पॉसिबल 3x3 का ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कुछ एंट्री 0 और 1। यस। सो हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन मेक हैविंग एंट्री 0 और 1? आपका 3x3 मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट होंगे? 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट। 9 होंगे। चलो, तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है? 0 और 1, 0 और 1। सो वी आर काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू फिल ईच पोजीशन, है ना। सो कितने पॉसिबिलिटी है? यू हैव 2 चॉइसेस फॉर दिस, 0 और 1, 0 और 1 you can put here. You have 2 choices for this, 0 or 1. You have 2 choices for this, 0 or 1, and so on. Each has how many choices? 2 choices. ठीक है। So each position has 2 choices. So total number of way you will have 2 raised to power 9. So you need to work on your permutation combination concept. If those who are struggling to understand this, आपको कहीं ना कहीं permutation combination के टॉपिक उसको समझना पड़ेगा। मेंस कुछ ऐसा समझिए, हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं जिसको फिल करने हैं, तो ये ऐसा समझ सकते हैं आप। So you can, same question you can think this way. So you have to fill 9 position, ठीक। Here each you have 2 choices to each position, 0 और 1, ठीक है ना। तो बताइए how many way you can fill? There are 2 possibilities here, 2 possibilities, 2 possibilities. So each position has 2 possibilities and you have to fill all the position. So total number of way of filling each position and each has 2 choices.
So there are 2 raised to power 9 choices. Okay, let's एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. Suppose we toss 9 coins. So what are the number of element in the sample space? 2 to the power 9. Same question is this. वो भी तो यही है ना, head or tail. So you can think like 0 or 1. So they are head or tail. So each position is like getting head or tail. Similar questions. या मान लो there are 9 chairs. There are 9 chairs in a park. And 9 person या 9 है ना, मान लो people यहाँ पे है. अच्छा सॉरी 9. तो मैं ऐसे बोलूं कि मैं each chair can be filled by a boy or a girl, male female. ठीक. So how many different ways you have total number of permutation of filling them? 2 to the power 9. तो 9 चेयर्स हैं, एक चेयर कोई मेल या फीमेल हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं. हाउ मेनी वे यू कैन फिल दैट समथिंग, मतलब कहने का रिलेट करना है आपको. सो दैट 2 पॉसिबिलिटीज, ईच पोजीशन हैज 2 पॉसिबल, मेल और फीमेल. सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल. सो दैट 2 raised to power 9 मतलब परम्यूटेशन है हालांकि वो. सो यू हैव टू सॉल्व परम्यूटेशन है यहाँ पे. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ 0 यहाँ 1 रखेंगे तो मीनिंग इज डिफरेंट, यहाँ 1 यहाँ 0 रखेंगे मीनिंग इज डिफरेंट, बोथ विल बी काउंटेड. तो परम्यूटेशन है यहाँ पे एक्चुअली, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. सो अब हमें समझना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. सो मेनली एडिशन, यू नो एडिशन कैसे होता है. पहले तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, यही होगा ना. और ऐसे ही तो ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, तुम्हें पता होगा हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस. ठीक है ना. सो ये है करस्पॉन्डिंग, ये ऐड कर सकते हैं क्या यहाँ पे. इस केस में a प्लस b क्या आएगा. नो सर, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है. तो क्या आंसर आएगा. तो a प्लस b आप क्या लिखोगे. हाँ, ऑर्डर सेम है. चेक करो ठीक से, सेम है कि नहीं है. मैं पूछ रहा हूँ, जब मैं चेक नहीं किया. एक मिनट, इसका ऑर्डर क्या है. तुम लोग देख के, हाँ ये 1/2 इसलिए कंफ्यूज हो. सही है, डिफाइंड है. फिर अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो मुझे लगा तुम सही कह रहे हो. ठीक है ना. ऑर्डर सेम है तो सिंपली कैसे फाइंड करोगे. छोटा थोड़ा. हाँ वैसे कंफ्यूजन हो गया. हाँ तो मैं भी लगा ऐसे ही ऑर्डर वाला लगा, मुझे लगा 2 क्रॉस 2 का. नो प्रॉब्लम. तो इसको इससे ऐड करेंगे आप, इसको इससे ऐड करेंगे, इस वाले को इस वाले से, एंड सो ऑन, है ना. इसको इससे और इसको इससे, तो ऐसा हो जाएगा. ऑर्डर सेम है तो. अच्छा ऑर्डर सेम नहीं होता तो क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड. तो मैं लिख रहा था, जैसे लगा शुरू में ऑर्डर सेम नहीं है. तो ऑर्डर अगर सेम नहीं होता तो नॉट डिफाइंड आंसर होता, क्योंकि सम इज डिफाइंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर. तो इक्वलिटी, सम, डिफरेंस, ये दोनों डिफाइंड है जब ऑर्डर इक्वल होगा. प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है ऑर्डर इक्वल हो. डिवीजन, मैट्रिक्स के डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है ना. तो मैट्रिक्स में डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं है. तो चलिए, सो यहाँ पे क्या करते हैं. के मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. मतलब हाँ ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है. मतलब 2 क्रॉस 3 into 3 क्रॉस 2 ऐसे करते हैं. हाँ वो मैं समझ गया. मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है. नहीं वो. हाँ सो उस पे आएंगे अभी. हाँ बोल रहा है कि इफ a and b are none of same order then a plus b is not defined. अगर a और b का ऑर्डर सेम नहीं है तो a b डिफाइन नहीं होगा. ठीक है ना. जैसे ये था एग्जांपल के लिए, तो a plus b is not defined. मान लो ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है. सो यहाँ सम डिफाइन नहीं होगा. इवन a माइनस b भी नॉट डिफाइंड होगा, है ना. प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा, a इंटू बी डिफाइंड हो जाएगा. उसके लिए रूल होता है कि ये इसके इक्वल हो. ठीक है ना. तो इस तरह सम और डिफरेंस. अब है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. तो ये जस्ट कुछ नहीं है, 2 टाइम a निकालना है. तो क्या करोगे, a मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. और ठीक है, इजी है, कुछ खास नहीं है. सो आपको k टाइम a निकालना हो तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो. मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे a मैट्रिक्स आपको यहाँ दे रखा है, बोला 3a निकालो, तो मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा.
नेगेटिव को यहाँ डिफाइन कर रहा है, देखो क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, a माइनस बी को ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, a प्लस माइनस 1 टाइम b, तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ऐड कर रहा है a के साथ, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस a एंड वी डिफाइंड इट बाय माइनस a को माइनस 1 टाइम a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, वही चीज जो मैं कह रहा था, a माइनस बी को लिखते हैं ऐसे, तो सम ऑफ द मैट्रिक्स a एंड माइनस b इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ a b। तो ये सब इजी है निकालना, तो तुम खास में कुछ है नहीं। अब मेन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो होता है मैट्रिक्स में। एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a भी साथ में यहाँ b सी साथ में है, तो ये रहता है इक्वल। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो मतलब a को जीरो मैट्रिक्स ऐड करो, जीरो मैट्रिक्स को a ऐड करो, जीरो है, सॉरी a है, तो हम बोलेंगे जीरो इज द एडिटिव इनवर्स, सॉरी जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में ऐड करो वो सेम रहे, तो यही चीज है। सो a प्लस जीरो, जीरो प्लस a, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्या लिखा है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो अलग है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम है नेगेटिव, है ना। तो जहां एडिटिव इनवर्स वर्ड होगा मतलब वो नेगेटिव की बात कर रहा है, जहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगा वहां रेसिप्रोकल की बात कर रहा है ना। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स इनवर्स का अलग चीज है, अलग मतलब है, तो ये एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। तो a प्लस माइनस a माइनस a प्लस a बराबर 0, तो माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a या नेगेटिव ऑफ a, ठीक है। तो ये मीनिंग है। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कुछ खास नहीं है, दिस थिंग यू नो ऑलरेडी। ये बताना चाह रहा है कि a प्लस बी को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k a प्लस k b हो जाएगा, या k प्लस l, दो अलग अलग नंबर्स हैं। यस सर, एडिटिव आइडेंटिटी को अलग तरह से क्यों डिस्क्राइब किया गया, मतलब कहते हैं वो जीरो मैट्रिक्स ही ना। हाँ, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी आपने अगर बाइनरी ऑपरेशन पढ़े होंगे 11th 12th क्लास में, या 12th क्लास में एक्चुअली जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले चैप्टर का आप चौथा एक्सरसाइज देखेंगे, वहां है बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ, तो हर ऑपरेशन की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक। जैसे एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, x इंटू 1 बराबर 1 इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x। तो इसका क्या मतलब है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और x प्लस 0 बराबर 0 प्लस x बराबर x, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन यही है कि कोई ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू सेम दे, तो वो आइडेंटिटी है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स के केस में, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स के केस में। मैट्रिक्स के केस में 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। और मैट्रिक्स ऐसे बताओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, सर इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम आना चाहिए। देखो तो a into I बराबर I into a is equal to a, so this identity matrix is multiplicative identity in matrix multiplication. Zero matrix is additive identity in matrix addition, ये चीज है। so हर ऑपरेशन के पास यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है, ऑपरेशन बदल जाएगी। अब बताओ सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है, क्या लगता है कोई सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो मैट्रिक्स नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे जीरो मैट्रिक्स है, नेगेटिव उसका, अबे देखो क्या हो गया आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन में कि a माइनस क्या लिखूं मैं ऐसा, या समथिंग माइनस a आना चाहिए, बताओ ऐसा समथिंग क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। यस। सो सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है उसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, एडिशन के पास 0 एलिमेंट आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के पास 1 नंबर के केस में आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, डिवीजन ऑपरेशन के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है।
सो एवरी ऑपरेशन हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आपको क्लियर होगा बाइनरी ऑपरेशन से, या जो लोग ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं तो वहाँ है ना आता है आइडेंटिटी एलिमेंट का जिक्र, या बाइनरी ऑपरेशन में आपको वो जिक्र मिलेगा आप अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 1.4 एक्सरसाइज, बाइनरी ऑपरेशन है तो वहाँ 2 नंबर पे ऑपरेशन की बात करता है, तो डिफाइन ऐसे करता है कि x स्टार e बराबर e स्टार x बराबर x, यहाँ स्टार एक ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और अदर थिंग, मैक्सिमम मिनिमम, तो स्टार एक ऑपरेशन है, तो x स्टार e बराबर e स्टार x बराबर x हो जाए, देन वी कॉल e इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन स्टार, ये चीज है। तो ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी में था, यस ग्रुप थ्योरी का कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं आगे सेट, फिर आगे वही बाइनरी ऑपरेशन आता है, बाइनरी ऑपरेशन पे ग्रुप थ्योरी बनाता है वो, यस। सो ग्रुप थ्योरी क्या है उस केस में, इसका एक कंडीशन है, हाँ है ना, अबेलियन ग्रुप जो होता है कम्यूटेटिव होने चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स, हाँ क्लोजर कम्यूटेटिव आइडेंटिटी इनवर्स, तो ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन का एक पार्ट है ये कि उस ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी होनी चाहिए उस सेट में, देन दे फॉर्म द ग्रुप, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ जैम स्टैटिस्टिक। जैम मैथमेटिक्स में ये है जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में वहाँ जैम मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी अलग सब्जेक्ट है। तो जैसे जैम मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, ग्रुप थ्योरी एंड एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों के अलावा जितना मैथमेटिक्स आप यहाँ पढ़ रहे हो ये सब जैम मैथमेटिक्स में भी है। तो जो मैथमेटिक्स पोर्शन हमारा है ना, अगर आप चाहो तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो आप जैम मैथमेटिक्स के 2005 से 2024 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो, बस उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, ये ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन छोड़ देना और डिफरेंशियल इक्वेशन का छोड़ दो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के मैथ पोर्शन में नहीं है, बाकी जो जैम मैथमेटिक्स में है वो सब यहाँ पे है अभी करंटली जो सिलेबस है ऑलमोस्ट। सो है ना, तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए जैम एमए मैं क्लास में कराऊंगा, हम लोग क्लास में जब असाइनमेंट आएगा तो जैम एमए का भी असाइनमेंट मिलेगा आपको, ये एक्चुअली फ्रॉम बीए सर ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी नहीं, 12th तक की पढ़ी। कोई बात नहीं, सीखना है अभी, ऐसे ही कोशिश करना, ये बताया आपको ना, सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो सीखोगे, इसलिए तो यहाँ आए हो आप, वरना है ना यहाँ पे क्या है, ये टारगेटेड स्टडी, हम लोग एक प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिसोर्स बहुत है मार्केट में लेकिन इतना तुम भटक जाओगे, तो मैंने यहाँ पे आप प्रॉपर जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल होगा, है ना ये। तो यू कैन आस्क, उसमें पूछना है सर उसमें से नल मैट्रिक्स क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? किस में कीजिए, तो a माइनस 0 0 माइनस a, क्या a के इक्वल आएगा, सोचिए, a माइनस 0 0 माइनस a आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स में भी तो हम कुछ सामने से तो नहीं लिख रहे हैं। हाँ एक मिनट, a प्लस a प्लस 0 0 प्लस a बराबर a, अच्छा ठीक है ना, तो प्लस की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, इसीलिए, तो दैट्स व्हाई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी बट 0 इज नॉट सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, ये है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हर ऑपरेशन के पास एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ इट एग्जिस्ट, हर ऑपरेशन के पास अगर एग्जिस्ट करता है तो, है ना, जैसे एडिशन के पास 0 है, मल्टीप्लिकेशन के पास 1 है, सब्ट्रैक्शन के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है मतलब, और डिवीजन के पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ये चीज। ओके, सो है ना, ये सिंपल प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं, कांस्टेंट a प्लस b, ये बल्ब दिखा रहा, छोड़ो, ये प्रूव कर रहा, अच्छा इसको प्रूव कर रहा होगा, इसी को प्रूव कर रहा है, छोड़ो हटाओ, तो ये तुम देख सकते हो, ये सब आसान है, बस बाकी हम बहुत ज्यादा, अब यहाँ आएगा मेनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका तरीका ये है सिंपल कि आप a को b से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a में नंबर ऑफ कॉलम b में नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, ये ना कंडीशन, ये चीज है। अगर आप b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम चीज, जैसे मान लो दिस इज अ मैट्रिक्स, यू आर मल्टीप्लाइंग विद अदर, तो इसका जो मान लो m क्रॉस n है तो इसको n क्रॉस p होना पड़ेगा, है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। तो n n कॉमन, अब जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी सर m क्रॉस p, हाँ, तो ये m क्रॉस n है, ये n क्रॉस p है, सो n कॉमन होने चाहिए क्योंकि यहाँ रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ होता है ना, ऐसी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि रो का प्रोडक्ट कॉलम के साथ होता है, एंड देन यू हैव मैट्रिक्स m क्रॉस p, सो यू हैव मैट्रिक्स m क्रॉस p का आएगा वो, सो रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकंड, तो ये m क्रॉस p बनता है।
तो ऐसा हो सकता है ए का मैट्रिक्स, जैसे ए का ऑर्डर है 2x3, बी का है 3x2, तो ए इंटू बी आएगी 2x2, इस तरह से ना डिफरेंट हो सकते हैं। सो बाय मल्टीप्लिकेशन आप लोग आते हैं ना, मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में, यहाँ टाइम है हमारे पास ना अभी, हाँ इसको भी कंप्लीट कर, यहीं पे एक साइज कंप्लीट करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो ये तुम अगर मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। सो बोल रहा है ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स है, बी जे के लिख रहा है, ये ताकि प्रोडक्ट डिफाइंड हो, इंडेक्स इसने जे के लिखा है, यहाँ इंडेक्स आई जे लिखा है, और ए जो मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस पी नहीं, ए जो है एम क्रॉस एन है, और बी जो है एन क्रॉस पी है, जो मैं कह रहा था। सो ए इज एम क्रॉस एन, बी इज एन क्रॉस पी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी को, तो ये ए इंटू बी का एलिमेंट दिखा रहा है, कैसा होगा। सो आप रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली, ये ध्यान दो, ai1, ai2, ai3, ain, ये कौन से एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के, बताओ। ai1, ai2, ai3, ain, these are element of फर्स्ट रो। नहीं, ए i1 है, i2, i3, in, ith रो, यस यस। ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ध्यान रहे यहाँ पे b1 के, b2 के, b3 के, bn के, ये क्या है, kth कॉलम, यस। तो इसने ith रो को मैट्रिक्स ए के, जो ए है इसका ith रो को मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स बी में kth कॉलम के साथ, है ना, तो उसका एलिमेंट इस तरह से दिखेगा। तो ए आई जे इंटू बी जे के और समेशन ओवर जे 1 फ्रॉम n। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, थोड़ा इसको लिख के दिखा देता हूँ, देखो। सो हाउ वी डिफाइन प्रोडक्ट एक्चुअली। सो होता क्या है, ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज अ मैट्रिक्स बी जे के, दिस इज एन क्रॉस पी। सो ए इंटू बी विल बी एक्चुअली, इसके एलिमेंट्स जो होंगे, मान लो ऐसा लिख दो, ये होगा सी आई जे और इसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी, वेयर सी आई जे इज नथिंग बट समेशन ए आई के, बी के जे एंड के फ्रॉम 1 to n। अब आपको ये समझना पड़ेगा ये आया कैसे, ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट का। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल मुश्किल रहता है बच्चों को समझने में, बट कुछ नहीं, कॉमन एलिमेंट है, देखो ना, ए आई के, बी के जे, सो ए आई जे, और ये सम हो जाता है। इसको मैं आपको समझा सकता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू या ओपन करके। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल a11, a12 कितने हैं, a1n, है ना, और यहाँ जगह बी मैट्रिक्स लिखूंगा तो ये b11, b21, b31 एंड सो ऑन, b इसमें n है, सो n1। तो आप करते क्या है, आप इस वाले रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले कॉलम के साथ, ही करते ना। सो a11 इंटू b11, a12 इंटू b21, ठीक, ध्यान दो। फिर यहाँ होगा a13 इंटू b31, तो ये चल रहा है ए आई के, बी के जे, के कॉमन है, तुम ध्यान देखो, के कॉमन है, फिर से देखो, a11 b11, a12 b21, a13 b31। सो इसका जो j है और यहाँ j है कॉमन है, मतलब के मत समझो, यहाँ पे यहाँ ए आई के लिखा है, बी के जे लिखा है। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा समझो, ए आई के लिख लो ऐसा इंडेक्स, और बी के जे लिख सकते हो। एक तो मैं लिखा ऐसा है, तुमको कंफ्यूज कर दिया, रुको ठीक से, या तो मैं नोटेशन ठीक कर दूं या फिर एक जो क्यों ए आई जे, तो या तो मैं इसको ऐसा लिखूं बी जे के, तो इसको आई के लिख सकता हूं मैं, है ना। तो या तो ऐसा समझो ए आई जे, पहला वाला भी ठीक था, बस तुम्हें एक जगह करेक्शन करना था मुझे, लेकिन ये फंस जाएगा। चलो इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ए आई जे बी जे, यहाँ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। सो ए आई जे बी जे के, तो यहाँ बनेगा ए आई के, तो यहाँ ए आई के लिखना चाहिए मुझे, ताकि तो यहाँ ए आई जे और बी जे के। अब ठीक है, मतलब जस्ट नोटेशन थोड़ा गड़बड़ गया था। ए आई जे बी जे के, जे कॉमन है, वो तो पहले भी था, बस यहाँ ए आई के कर दिया यहाँ पे। क्यों कर दिया, यहाँ आई जे, यहाँ जे के, बस ये दिखाने के लिए कि जब प्रोडक्ट करते हैं तो इसका पोजीशन ए वाले का यहाँ पोजीशन कॉमन रहता है। यू कैन नोट हियर,
A11 B11 A12 B21, देखो J कॉमन है, मैं ये कहना चाहूँ यहाँ नोटिस करो J कॉमन है, एंड देन तुम ऐड करते हो A13 B31 एंड लास्ट में A1N BN1। तो यहाँ जो J है और यहाँ जो J है फर्स्ट वाला, यहाँ J और ये J कॉमन है, एंड देन यू ऐड ओवर इट, और ये J क्या होता है 1 से लेके, ये जो J था यहाँ पे तो 1 से लेके n तक गया है, यहाँ भी 1 से n तक गया है, एंड दैट्स व्हाट वी डू विथ ईच एलिमेंट। यही चीज मैं इसी का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसी को फिर इसके साथ, इसी को फिर इसके साथ, फिर सेकेंड रो को इसके साथ, सेकेंड रो, तो ऐसे करके तो ईच रो पहले मैट्रिक्स का, ईच कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो दिस यू नो है ना, सब लोग पता है कि मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। ओके तो ये यहाँ पे आपको सिखा रहा है, मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट पे आता हूँ। सो ये सिखा रहा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मिलेगा, जब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा, जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला एलिमेंट मिलेगा, जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो रोज है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। ये चीजें सो यू कैन ट्राई है ना, ए बी और बी ए जरूरी नहीं इक्वल हो, एक डिफाइंड होगा जरूरी नहीं दूसरा डिफाइंड हो। तो इसको अगर देखो एग्जांपल्स तुम लोग है ना, ये बताना चाह रहा है कि हो सकता है ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड ना हो, ये भी हो सकता है, हो सकता है बी ए डिफाइंड हो ए बी डिफाइंड ना हो सकता है दोनों डिफाइंड हो सकता है दोनों डिफाइंड ना हो, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर जो मैचिंग चाहिए, फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड का नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। सो वो चीज है। अब बाकी नॉन कम्यूटेटिव, क्या हर मैट्रिक्स ए बी और बी इक्वल होता है? नहीं, जरूरी नहीं है ना, तो जरूरी नहीं ए बी और बी हमेशा इक्वल होगा। एक बार इसको ठीक से देख लो है ना। अच्छा देखो, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, हो सकता है टू नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे और जीरो मैट्रिक्स आ जाए। एग्जांपल के लिए यहां तुम देख सकते हो, यहां देखो, यहां पे है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट करो जीरो मैट्रिक्स आ गया। सो टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है, देख लो। तो इसीलिए जैसे मान लो a इंटू बी जीरो है, तो जैसे नंबर्स में करते हैं x इंटू वाई बराबर जीरो, आइदर x इज जीरो और y इज जीरो, यहां ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर a इंटू बी जीरो है तो हो सकता है a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो, बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक को जीरो होना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि a भी जीरो है तो एक को जीरो ही होना पड़ेगा। एग्जांपल यहां पे है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स जीरो है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी बोथ शुड बी जीरो, बोथ में भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, स्टिल प्रोडक्ट में भी जीरो, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ना, ये यहां कहना चाह रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस विल बी जीरो मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज देख लो, तो कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, ए बी और बी ए जरूरी नहीं इक्वल हो, एसोसिएटिव हमेशा होगा, तो एबीसी और एबीसी हमेशा इक्वल होगा अगर ऑर्डर डिफाइंड है तो, मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड है तो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी सी ये होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे a इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज था। सो आप इसको ट्राई करके आओ, अगर डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ खत्म हो गया होगा ये थ्योरीज, तो मेनली मैं अभी थ्योरीज डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या थ्योरीज हैं 11th 12th में, क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई। तो हमने आज ज्यादा नहीं किया, हमने आज 3.1 3.2 ही किया, दो और एक्सरसाइज है इसमें। सो आप इसको रिवाइज करके आइए, अगले क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल जो है जी, ऊपर एक नोट दिया जहाँ पढ़ा रहे थे अभी। हाँ क्या दिया बताइए, कल यहाँ से करेंगे, बोलिए। सर उस नोट में ये लिखा है कि यस सर, बोलो बोलो क्या लिखा है। observe that multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative, मतलब दोनों अगर diagonal matrices हैं
तो वो कम्यूटेटिव होगा, मतलब Yes. AB will be equal to A। एंड अगर कोई और आप बता रहे थे सर कि अगर कोई एक भी होगी स्केलर मैट्रिक्स तो भी कम्यूटेटिव होगा। Yes. दोनों चीजें हैं। हाँ, अगर दोनों आइडेंटिटी है तो हमेशा दोनों डायगोनल है, सही कह रहे हो आप। सो अगर दोनों डायगोनल है तो ए बी बराबर बी ए तो होगा ही। यस, सो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि सर नीचे पेज 54। अच्छा एक मिनट, ये 74 में नो लास्ट से पेज पढ़ा रहे जहाँ प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा ये ओके अच्छा, एक तो ये कह रहा है कि बोथ ए कोई m क्रॉस n b k क्रॉस l है, बोथ ए बी और बी ए डिफाइंड है, इसका मतलब है n बराबर k l बराबर m होगा, सही है। सर इसके नेक्स्ट पेज पे, अच्छा इसके नेक्स्ट पेज पे लिखा है वो, ओके इसकी बात कर रहे हैं आप, ये भी नहीं है, दे मे नॉट बी सेम। सर ये रहा। अच्छा इसकी बात, एक मिनट, तो क्या था, दिस डज नॉट मीन दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स AB, मतलब AB और BA इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स AB BA हमेशा इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा ना ये। ओके ओके, सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। अगर दोनों डायगोनल है तो AB BA हमेशा इक्वल होगा। ओके, अगर एक भी किसी दो AB में से अगर एक ही कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो भी AB और BA इक्वल होगा, चाहे B कुछ भी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल A मेरा है 2 2 0 0 फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना। अब B 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, एनी, मतलब अगर B मान लेता हूं कुछ भी ऐसा ABCD, तो भी AB बराबर BA ही आएगा। हाँ ये मैं कह रहा था, ठीक है। अगर स्केलर एक भी कोई हो जाए, B कुछ भी हो तो AB बराबर BA ही आएगा। यहाँ कह रहा है कि दोनों अगर डायगोनल है तो भी AB BA इक्वल आएगा, दोनों डायगोनल है तब। अदरवाइज एक स्केलर है एक कुछ भी है, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो कम्यूटेटिव होगा। यस ठीक है, ठीक है। हाँ ओके डन, तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे डिस्कस करो। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल। अभी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट रिवाइज करना है, तो मैं अब 1 तारीख से पहले हम लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करके 10 से 11 डाउट क्लास है, जिनके डाउट्स है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।